Hello everyone, welcome again to the Literature IQ Education. Today we are going to discuss Ben Jonson. Yes, he is known for the tribe of Ben. Till then, you have to tell me who were the tribe of Ben, why they are known as tribe of Ben. So let's start the topic. Ben Jonson, the great dramatist and a poet of the Jacobean age. Yes, King James I, the era after Elizabethan age, that is known as Jacobean age. Jacobean age lies between 1603 to 1625. You should remember this time period 1603 to 1625, James I or Jacobean age. This is known as Jacobean age. Okay, so what is important about Ben Jonson? The very first thing is he is Jacobean dramatist. Jacobean dramatist plus he was born in Westminster, London, and his time period is 1572. Means he was born in 1572. Actually, UGC has asked question about the chronological sequence of the writers. Okay, the dramatist. तो आपको जो है क्या ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्रिस्टोफर मार्लो, he was born in 1564 and he died 1595. Then we have Shakespeare, William Shakespeare. He was born in 1564, the same time period, the same year, and he was died in 1616. So then we have Ben Jonson. What is the time period of Ben Jonson? 1572. So this is the sequence: Christopher Marlowe, William Shakespeare, and Ben Jonson. So you should remember these dates. This year, कि आपको chronological sequence इनका समझ में आ जाए. Okay. He was English. It means he was a British writer. He was a playwright, poet, and actor too. As I told you कि इन लोगों को शेक्सपियर हुए, बेन जॉनसन हुए, इनको फर्स्ट हैंड लाइव स्टेज का जो है एक्सपीरियंस था. तो ये एक्टर भी थे, पोएट भी थे और प्लेराइट भी थे. He was born in a family of bricklayers. This is very important. He was born in a family of bricklayers. He showed early talent and went to Westminster School. Financial difficulties, he faced financial difficulties and left school early. अब आपको पता है he was the son of bricklayer. Actually क्या होता है कि इनके फादर जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है एंड आफ्टर दैट इनकी लाइफ में और ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं. इनके जो स्टेप फादर हैं, एक पर्सन और आते हैं जो इनके स्टेप फादर आगे चल करके बनते हैं और वो ब्रिकलेयर थे. तो इनका जो ब्रॉटअप किया गया था वो बाय स्टेप फादर किया गया था जो कि ब्रिकलेयर प्रोफेशन से थे. वर्कड एज अ सोल्जर टू एंड एज एन एक्टर बिफोर टर्निंग टू राइटिंग. अब देखिए पहले ये सोल्जर थे, देन सोल्जर से ये एक्टर बने एंड आफ्टर दैट ही बिकेम राइटर. ठीक है, पहले सोल्जर, then actor, and then he became writer. So this is the early life of Ben Jonson. He was born in 1572, London, died 1637. He was born in 1572, died in 1673. 37. He was playwright, poet, and actor. First he was soldier, then he became actor, and then he became writer. Literary style. This is the most important thing we have to discuss here. What was his literary style? Master of the comedy of humors and satire. Actually, then society was very corrupted. We can see through the writings of those writers जो उस टाइम पे लिखा करते थे, है ना. तो हमें जो है वो राइटिंग्स, जो करप्शन है, जो ग्रीडीनेस है, जो लस्ट है सोसाइटी की, वो इन राइटर्स के वर्क्स के थ्रू हमें देखने को मिलती है और उनको इन्होंने सटायर किया है. यानी बेन जॉनसन जो है वो देन सोसाइटी की जितनी भी करप्शन है, ग्रीडीनेस है, यानी जो भी उनके आप कह सकते हो सोसाइटी की जो इमोरल वैल्यूज थी, उनको सटायर करते हुए अपने वर्क्स को लिखा है. नॉन फॉर बैलेंस, डिसिप्लिन एंड क्लासिकल इन्फ्लुएंस. आगे जाके हम देखेंगे कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लासिकल राइटर्स टू, जिसमें वो शेक्सपियर के लिए कहेंगे कि उनकी राइटिंग्स में हमें क्लासिकल जो है वो नहीं दिखता है. इट मींस कि उन्होंने इतना अच्छे से क्लासिकल राइटर्स को जो है स्टडी नहीं किया है, इस वजह से उनके अंदर लैक है. यूज्ड विट, आयरनी एंड विविड कैरेक्टराइजेशन. जैसे कि आप देखेंगे कि इन्होंने अपने वर्क्स में विट का यूज किया है. ठीक है,
जैसे लवविट नाम से इनका करेक्टर, जैसे उनके करेक्टर्स होते हैं उनके नाम पे ही उनके जैसे उनके करेक्टर्स के आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, उन्हीं के नाम जो है वैसे ही शो के, जैसे लवविट था, नोवेल था, तो उनके जैसे उनकी पर्सनैलिटी थी वैसे ही उनके नाम रखे गए थे। तो इनकी कैरेक्टराइजेशन बहुत विविड है। आर्ट ओवर नेचर, ओके, ही बिलीव्ड इन आर्ट ओवर नेचर, राइटिंग विद क्राफ्ट एंड रूल्स के साथ ही लिखा करते थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश रेनेसांस को कहा जाता है। इन्होंने ट्रांजिशन जो है वो किया था, यानी एलिजाबेथन राइटिंग जो होती थी वो थोड़ी बहुत जो है आप कह सकते हो क्लासिकल राइटर्स से इन्फ्लुएंस थी। इन्होंने जैकोबियन ड्रामा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लिखा था, क्योंकि इनकी जो राइटिंग्स थी वो आप ये कह सकते हो कि काइंड ऑफ ए सटायर थी, है ना। इससे पहले सटायरिकल वे में नहीं लिखा जा रहा था, तो ये थोड़ा सा चेंज आया था एलिजाबेथन टू जैकोबियन ड्रामा में। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लर्निंग और क्रिटिकल राइटिंग्स के लिए भी जान जाते हैं। हम देखेंगे कि इन्होंने शेक्सपियर के बारे में भी जो है कुछ क्रिटिकल हमारे सामने रिव्यूज दिए हैं। देन वी हैव लाइफ एंड करियर। इनको जो फेम मिला था, he was he gained fame in comedies like Every Man in His Humor। एक्चुअली बेस इनकी क्या है, 4 कॉमेडीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जो है देखेंगे कि इनकी जो कॉमेडीज हैं उनके थ्रू कुछ जो है आप ये जो फ्लूइड होते हैं ह्यूमन पर्सनालिटी में या ह्यूमन की जो इंस्टिक्ट में जो फ्लूइड होते हैं उनको डिस्क्राइब करती हैं। हम देखेंगे कैसे। नॉन फॉर हिज राइवलरी विद कंटेम्परेरी प्लेरिट्स, स्पेशली शेक्सपियर के साथ इनकी राइवलरी को बहुत जाना जाता है। एंड ही वाज अपॉइंटेड इन 1616 पोएट लॉरिएट। ये आपको ध्यान रखना है, किंग जेम्स फर्स्ट का जब कोर्ट था उस कोर्ट के टाइम पीरियड में इनको पोएट लॉरिएट जो है बनाया गया था 1616 में, यानी जब शेक्सपियर की डेथ हुई थी उस टाइम पे इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था। आप यूं ध्यान रख सकते, क्योंकि इन द ईयर 1616 शेक्सपियर डाइड और उस ईयर इनको बेन जॉनसन को क्या बनाया गया था, पोएट लॉरिएट। मेजर थीम क्या होते थे, देखिए इनके ह्यूमर्स क्या था कि ह्यूमन फॉली एंड रिडिकुलस बिहेवियर, इसको जो है ये सामने अपने थीम के रूप में रख करके अपनी राइटिंग्स किया करते थे। ये सटायर करते थे सोसाइटी पे, प्रोफेशंस पे, कंटेम्पररी लाइफ पे, मोरालिटी, जस्टिस एंड द ऑर्डर ऑफ क्लासिकल आइडियल्स, और सर्च फॉर रिफॉर्म थ्रू लाफ्टर एंड विट। अब देखिए कॉमेडीज जरूर लिखी है इन्होंने, जैसे कि आपने देखा कि कॉमेडीज के अंदर इनकी आप देखोगे आगे चल करके कि वल्पनी द फॉक्स है या फिर इनका जो है एल्केमिस्ट है, इनमें आपको कॉमेडी मिलेगी। लेकिन उस कॉमेडी के साथ साथ यानी इनका मानना है कि जो आर्ट है दैट शुड बी इंस्ट्रक्टिव टू, वो ना सिर्फ आपको एंटरटेन करे बल्कि आपको डिलाइट के साथ साथ वो आपको कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज भी सिखा कर जाए। सो इनका जो राइटिंग है उसमें आपको क्या लिखेगा, आर्ट फॉर लाइफ सेक आपको मिलेगा। यानी आर्ट का जो कोई भी आप आर्ट लिख रहे हो या कोई भी आर्ट आप देख रहे हो उससे सिर्फ प्लेजर ना मिले, आपको कुछ मोरल वैल्यूज भी आपके अंदर इनकैलकेट हो। तो ये चाहते थे सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म करना थ्रू लाफ्टर एंड विट। एक होता है ना कि किसी को स्ट्रिक्टली हम कुछ मोरल वैल्यूज को जो है सिखा रहे हैं, इनकैलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये थ्रू विट एंड लाफ्टर जो है लोगों में चाहते थे कि मोरल वैल्यूज इनकैलकेट हो। ये जो प्लेज है इनकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट वन यू शुड नो द ईयर ऑल्सो कि ये वर्क कब जो है आया था। इट वाज 1598 जब एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है पब्लिश हुआ। देन वल्पनी द फॉक्स, एल्केमिस्ट, ये यहाँ पे थोड़ा क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा बट नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देख लेंगे। बार्थेलम्यू फेयर 1614, साइलेंट वीमेन 1616 और एपिसियन, ये दोनों एक ही है, ठीक है। द साइलेंट वीमेन और एपिसियन जो है ये यहाँ पे 2 बार आ गया है, आपको मैं आगे डिस्कस करूंगी इसे। पॉइम्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड, एपिग्राम्स एंड सॉन्ग्स जो है इसके फेमस हैं। ये प्रोज वर्क्स में 2 इंपॉर्टेंट हैं, डिस्कवरीज, टिम्बर, ठीक है, ये इसके पोस्टह्यूमसली वर्क्स हैं, ठीक है, टिम्बर और डिस्कवरीज। कोलैबोरेशंस में भी इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे हैं, वो भी हम देखेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई होप दिस स्लाइड क्लियर टू यू। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एट ए ग्लैंस कि उनका जो बर्थ है वो 1572 में हुआ। ही वाज डाइड इन 1637। ही वाज इंग्लिश playwright, poet and actor. He began his writing in 1590s. He gained fame with the comedies Every Man in His Humor. जो पहला जो इनका वर्क था, वेरी फर्स्ट वर्क 1598 वाला, इसी में इनको क्या मिल गया था, पॉपुलैरिटी मिल गई थी। He was very famous at that time. Appointed poet laureate in 1616 and respected by King James First, उस टाइम थे कोर्ट के अंदर। इन्होंने जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एंड सटायर के ऊपर जो है सटायर्स जो है वो लिखी हैं। वो आर्ट में बिलीव करते थे और वो टीचिंग यानी कि आर्ट जो है वो ना सिर्फ एंटरटेन करे बल्कि आपको इंस्ट्रक्ट भी करे, ये ऐसा चाहते थे। सो दैट्स इनफ अबाउट द बायोग्राफी ऑफ बेन जॉनसन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखिए
before jumping into directly to the topic itself, first of all we should know that what is that humor जिसके लिए बेन जॉनसन को जाना जाता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्लाइड. इसमें आपको क्या मिलेगा, जो मेन कैरेक्टर्स है यानी प्रोटैगनिस्ट ऑफ बेन जॉनसन कॉमेडीज, उनमें एक तरह का आप कह सकते हो एक फ्लूइड पाया जाता है जिसकी वजह से इनकी कॉमेडीज बहुत फेमस हुई थी. देखिए, प्रीडोमिनेंट बाइल को हम ह्यूमर भी कहते हैं, है ना, ह्यूमर. तो देखिए ऐसा कौन सा बाइल था जिसकी वजह से ये जो वर्क्स हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जिसमें ये कैरेक्टर्स थे आपके, काइटली हो गया, ठीक है, अ जेंटलमैन हुज अफेक्टेड फैंटास्टिकल ह्यूमर ड्राइव्स द प्लॉट. अब देखिए जिसकी वजह से प्लॉट जो है वो आगे ड्राइव करता है. ऐसे कौन से ह्यूमर थे, कौन से बाइल थे इनके अंदर? तो वेरी फर्स्ट वन, देखिए कोई इंसान, आप ये सोचिए जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कोई इंसान जिसके अंदर कोई ना कोई जो है फ्लूइड की कमी या अधिकता होती है ना, यानी या तो कोई फ्लूइड जो है, कोई बाइल या ह्यूमर जो है उसके अंदर कम है, लैक कर रहा है, या फिर उसमें क्या है, उस चीज की अति है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्लॉट ड्राइव करता है. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम काइटली को लें तो एक जेंटलमैन था ये, whose affected fantastical humor drives the plot. यानी इसके अंदर क्या पाया जाता है, सैंग्विन. सैंग्विन का मतलब क्या होता है, ये बंदा जो है काइटली, ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन था. ही वॉज वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स द लाइफ. तो इसके साथ ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से ये प्लॉट जो है, ये ड्राइव आगे जाके जो है प्लॉट को जो है आगे आप कह सकते हो ड्राइव करने में आगे जो है फोर्स मिलता है. तो आपको इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए. देन वी हैव एल्केमिस्ट. 1610 में आया था. द डेट इज द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज एल्केमिस्ट. ये 1610 में, यानी 1598 में आया था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. ओके, उसके बाद आया था एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, 1599 में आया था. उसके बाद जो है आपका द एल्केमिस्ट. एल्केमिस्ट 1610 में. उसके बाद ये आया था आपका वॉल्पनी आया था, वॉल्पनी द फॉक्स. इसका जो है फुल टाइटल वॉल्पनी द फॉक्स है. ये 1606 में आया. उसके बाद आया आपका द साइलेंट विमेन, एपिसियोन और द साइलेंट विमेन. ये इसका पूरा टाइटल है, एपिसियोन और द साइलेंट वुमेन. ये 1609 में आया. उसके बाद एल्केमिस्ट आया, यानी पहले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599. उसके बाद आपका आता है 1606 में वॉल्पनी द फॉक्स. उसके बाद 1609 में द साइलेंट विमेन. उसके बाद 1610 में यानी 1610 में एल्केमिस्ट. उसके बाद बार्थोलोम्यू फेयर 1614 में, और द डेविल इज एन एस, ये 1616 में. सो दीज आर द कॉमेडीज रिटन बाय बेन जॉनसन, जो अपने प्रीडोमिनेंट बाइल या ह्यूमर के लिए जानी जाती है. अगर आपसे पूछे कि सैंग्विन जो बाइल है वो कौन से कैरेक्टर में पाया गया, वो पाया गया काइटली. काइटली नाम का कैरेक्टर है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में. देन है बहुत इंपॉर्टेंट एल्केमिस्ट में सटल. सटल को हम इसमें फेस के नाम से भी जानेंगे. इसका नाम फेस भी आपको पढ़ने को मिलेगा. ये बहुत ही ग्रीडी सा जो है एक एल्केमिस्ट होता है, जो अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को क्या करता है, ट्रिक करता है, लोगों के साथ धोखा करता है. तो एल्केमिस्ट में सटल जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए क्या करेगा, ट्रिक करेगा लोगों को. और इसके अंदर क्या है, येलो बाइल यानी कॉलरिक, येलो बाइल ज्यादा है. इसका मतलब होता है ये बहुत ही एम्बिशियस है. और एम्बिशियस भी कैसे, ये बहुत अति में है, यानी ओवर रीचर है, ये ओवर एम्बिशियस है. दैट्स वाई ये सबके साथ ट्रिक करने की कोशिश करता है. बट इसकी वजह से इसका क्या आएगा, डाउनफॉल आएगा एट द एंड ऑफ द प्ले. Then we have again Volpini the fox. Volpini जो फॉक्स है, ये कनिंग ओल्ड फॉक्स है, जो अपनी इलनेस को फेन करने की कोशिश करता है ग्रीडी लोगों को. यानी ये इसका टारगेट कौन है, ये कोई सिंपल पर्सन या बहुत कॉमन पर्सन इसके जो है टारगेट नहीं है. इसके टारगेट कौन है, जो ग्रीडी पीपल है, जिनके पास जो है बहुत कुछ है बट स्टिल दे वांट मोर. अब वो ग्रीडी पीपल जो है, उनकी ग्रीडीनेस को जो है ये अट्रैक्ट करने के लिए क्या कहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है बट मैं क्या हूं, मरने वाला हूं, तो मुझे अपना कौन चाहिए, मुझे अपना एयर चाहिए, मतलब मुझे मेरा उत्तराधिकारी चाहिए जो मेरे बाद में मेरी इस धन दौलत को संभाल सके. मतलब ये ऐसा पर्सन है, देखिए इसको ध्यान से, जो ये यहाँ पर वल्पनी है, ये इस प्रकार का कैरेक्टर है कि ये सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी जो तिजोरी है, अपनी ट्रेजरी है, उसकी ये पूजा करता है, अपने गोल्ड की. तो आप देख सकते हैं कितना ग्रीडी है और कितना ये जो है धोखा करता है लोगों के साथ आगे चल करके. सो इसमें कौन सा, यानी इतना ग्रीडी या इतना कनिंग है, तो इसके अंदर कौन सा बाइल ज्यादा है, इसके अंदर ब्लैक बाइल, यानी ये मेलनकलिक कैरेक्टर है. इसका मतलब होता है बहुत ही सस्पिशियस, कनिंग
और सैड। तो इस वजह से ये ज्यादा है इसके अंदर, इस वजह से ये ऐसी पर्सनालिटी है। तो आपको ये पता चलेगा जब आप इसका प्ले पढ़ोगे। देन वी हैव साइलेंट वुमेन। देखिए इसमें मोरोस नाम का एक यंग जेंटलमैन होता है, ठीक है, कौन होता है? मोरोस। अब मोरोस जो है उसके अंदर पाया जाता है फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है बड़ा ही काम सा, स्लो सा, डल सा। अब इसे कैसा पर्सन चाहिए? ये शादी करना तो चाहता है, बट ये शादी करने के लिए इसको ऐसी लड़की चाहिए जो साइलेंट हो, है ना, जो बिल्कुल भी इसको तंग ना करे, बिल्कुल भी बोले नहीं, टॉकेटिव ना हो। अब जो है मोरोस जो है एक साइलेंट वुमेन यानी एक एपिसियोन नाम की एक लड़की होती है, उससे शादी कर लेता है। और होता क्या है, वो जितनी शांत दिखती है रियल में, इतनी शांत वो होती नहीं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा आगे चल करके परेशान हो जाता है अपने इस फ्लेम या फ्लैग्मेटिक बाइल के कारण, क्योंकि ये बहुत ही काम एंड डल है और इसकी वाइफ जो है इसके ऑपोजिट है, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होती है। तो इसके लिए वो सरदर्द बन जाती है। तो बेसिकली एक वुमेन टू इनहेरिट हर फॉर्चून, यानी ये मैरी करता है एक साइलेंट वुमेन को जो उसकी फॉर्चून को इनहेरिट करे इन फ्यूचर। तो इसके अंदर फ्लैग्मेटिक जो बाइल है वो ज्यादा है, जिस वजह से ये काम एंड स्लो एंड डल है। और ये चाहता है कि उसकी लाइफ में जो कोई भी आए वो लड़की भी इसके जैसी ही हो, बट जैसे मैंने आपको बताया ये बिल्कुल ऑपोजिट लड़की से शादी करता है। देन वी हैव बॉस्टफुल, स्विडलिंग, गैलेंट हु चीट्स इन द मार्केट, और उसका नाम क्या है? हेरी। और ये बार्थोलोम्यू फेयर का कैरेक्टर है। इसके अंदर क्या है? येलो बाइल, यानी कि कॉलरिक है। ये येलो बाइल जो है इसके अंदर ज्यादा है, यानी बहुत ही एम्बिशियस, हॉट हेडेड और इरिटेबल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है बार्थोलोम्यू फेयर के अंदर। इसको आपने डिटेल में पढ़ना चाहिए इन वर्क्स को जो अब तक मैंने डिस्कस किए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, द डेविल इज एन एस। ये 1616 में आया था और इसमें अंदर जो करेक्टर है वो बहुत ही सिंपल, गुड नेचर्ड मैन है हु इज ट्रिक्ड बाय अदर्स। यानी ये कैसा है? फ्लैग्मेटिक इसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। ये है तो इसके जैसे ही बहुत ही शांत सा, डल सा, ये गुड नेचर्ड मैन है, लेकिन इसको जल्दी दूसरे लोग जो हैं जल्दी इसको ट्रिक कर लेते हैं। यानी इतना भोला भाला नेव सा इंसान है कि दूसरे व्यक्ति, जैसे इसके साथ भी होता है ना, कि ये पहचान ही नहीं पाता एपिसियोन को कि वो कैसी कैरेक्टर की, कैसी है वो लड़की, कि वो साइलेंट है भी कि नहीं है, है ना, ये उसकी ट्रिक में आ जाता है। ऐसे ही जो फिजवेरिन है ये भी एक सिंपल और गुड नेचर्ड मैन है और ये दूसरों से इजिली ट्रिक हो जाता है, यानी दूसरे इजिली इसको फूल बना देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ बेन जॉनसन्स कॉमेडीज, जिसमें आपको एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में काइटले, ठीक है, एल्केमिस्ट सटल, वॉल्पनी में वॉल्पनी खुद, साइलेंट वुमेन के अंदर मोरोस, बार्थोलोम्यू फेयर के अंदर हेरिंग और डेविल एज एन एस के अंदर कौन आ जाएगा? आपका फिजवेरिन। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स, देखिए इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन सा बाइल पाया जाता है और उसकी वो खास बात क्या है, कि उस बाइल का मीनिंग क्या है। आई होप यू गॉट इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए we have discussed little bit about Ben Jonson in our very first slide. Let's do more, let's explore more about Ben Jonson. Actually this is the writer of Jacobean age. He began his career in the Elizabethan period and considered one of the greatest English dramatists. शेक्सपियर के बाद में अगर हम किसी की बात करें जो बहुत जो है अच्छे आप कह सकते हो लेवल के राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, वो थे बेन जॉनसन। इन्होंने राइटिंग शुरू एलिजाबेथन पीरियड में की थी, लेकिन इनकी जो सबसे ज्यादा राइटिंग्स है 1590s के बाद, यानी कि वो मानी जाती हैं कि लाई करेंगी आपकी जैकोबिन पीरियड के अंदर। तो जैकोबिन जो पीरियड है उसमें इनकी राइटिंग्स लिखी गई, इसलिए इनको ज्यादा कहा जाता है कि जैकोबिन एरा के ये राइटर हैं। इनका जन्म वेस्टमिंस्टर में हुआ था। इनके फादर डाइड हो गए थे बिफोर हिज बर्थ। ही वाज रेज्ड बाय अ ब्रिकलेयर स्टेप फादर, ठीक है। तो इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? ब्रिकलेयर स्टेप फादर ने किया था। एजुकेटेड वेस्टमिंस्टर स्कूल, ग्रेट स्कॉलर विलियम कैम्पडेन हु बिकेम अ लाइफ लॉन्ग इन्फ्लुएंस। इनके ऊपर जो है इनके इन मेंटोर का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रहा। सर्व्ड एज अ सोल्जर, कहां पर? लो कंट्रीज बिफोर टर्निंग टू द थिएटर, क्योंकि ये एक्टर बनते हैं उसके बाद में। थिएटर का मतलब क्या है कि पहले ये सोल्जर थे, फिर ये एक्टर बन जाते हैं। इन्होंने अपने फेलो एक्टर को जो है किल कर दिया था, जिनका नाम था गैब्रियल स्पेंसर इन अ ड्यूल, एस्केप्ड हैंगिंग बाय प्लीडिंग बेनिफिट ऑफ क्लर्जी। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये लैटिन पढ़ सकते थे और आपको पता है कि देन जो सोसाइटी थी, जो उस टाइम की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में क्लर्जी को बहुत ज्यादा माना जाता था। तो इन्होंने लैटिन पढ़ के ये कहा कि मैं लैटिन पढ़ सकता हूं, इट मींस आई एम द पार्ट ऑफ क्लर्जी, तो मुझे जो है मैं प्लीड करता हूं कि मैंने जो किया है
उसके लिए मुझे फांसी की या मुझे कोई पनिशमेंट ना दी जाए। तो इन्होंने हैंगिंग को जो है स्केप कर दिया था बाय प्लीडिंग बेनिफिट ऑफ क्लर्जी, कि उन्होंने कहा कि मैं लेटिन पढ़ सकता हूं, ये प्रूफ देकर के उन्होंने बोला कि मैं क्लर्जी हूं और मुझे जो है फांसी की सजा ना दी जाए। इनको बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इंप्रिजन किया गया, क्योंकि इनके जो प्ले होते थे वो सेडेशियस प्ले थे, जैसे सॉरी इनका एक प्ले था द आइल ऑफ डॉग्स, एक था ईस्टवर्ड हो। ये लाइन आपके लिए, द लाइन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि एक तो था इनका आइल ऑफ डॉग्स और एक था इनका ईस्टवर्ड हो। इन दोनों वर्क्स के कारण इनको मल्टीपल टाइम्स जो है कहां जाना पड़ा, प्रिजन में जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। देन ही कन्वर्टेड टू रोमन कैथोलिसिज्म while in prison, later reconverted, फिर से जो है वापस से कन्वर्ट हो गए थे अपने पहले के जो है उसमें। तो रोमन कैथोलिसिज्म इन्होंने कुछ टाइम के लिए अपना लिया था, फिर रिकन्वर्ट हो गए थे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है। यू कैन मेक नोट्स और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो है एज अ राइटर, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब बेन जॉनसन एज अ क्लासिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि जॉनसन वाज अ फियर्स क्लासिस्ट बिकॉज ही बिलीव ड्रामा शुड बी, कि ड्रामा जो है वो कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे कि अब आप सोचोगे कि शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो आपका सबसे पहला ही पॉइंट क्या है कि शेक्सपियर को क्रिटिसाइज बेन जॉनसन ने कहा कि यूनिटी जो है उनको वायलेट किया है शेक्सपियर ने। 3 यूनिटीज, जो यूनिटीज होती हैं आपकी टाइम, प्लेस और एक्शन। आप इसको यूं समझिए कि अगर कोई भी ड्रामा लिखा जाता है ना, तो उस ड्रामा में यूनिटीज को बखूबी ध्यान रखना चाहिए कि टाइम यानी एक सिंगल डे, यानी सुबह जो है आप कह सकते हो मॉर्निंग, फिर नून और फिर इवनिंग, यानी सिंगल डे के अंदर उसकी सेटिंग होनी चाहिए। टाइम भी कैसे प्रॉपर होना चाहिए कि जब आप प्ले जो है कोई लिख रहे हो तो टाइम को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि अभी मॉर्निंग का समय है तो इतना बजा है, फिर दोपहर को इतने बजे हैं, अब इतने बजे ये हुआ। जस्ट लाइक आपको एक पूरा का पूरा जो है क्लियर कट जो है टाइम और एक्शन का वो होना चाहिए, प्लेस का। तो प्लेस जो है वो एक सिंगल प्लेस, यानी कि वो आपका जो ड्रामा है वो क्या होना चाहिए, उसमें यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी इन द सेंस कि सिंगल डे 24 आवर्स के अंदर, सिंगल डे के अंदर और प्रॉपर वे में जो है अपनी एक्शन को इनेक्ट करने वाला ड्रामा आपको लिखना है। तो ये 3 यूनिटीज को फॉलो करते थे, यानी एरिस्टोटेलियन जो यूनिटीज हैं तीनों को, यानी टाइम, प्लेस एंड एक्शन की बात वो करते हैं और कहते हैं कि इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जबकि शेक्सपियर ने क्या किया था, इनको वायलेट किया था, जिसपे बेन जॉनसन क्या करेंगे, उनको क्रिटिसाइज करेंगे कि उन्होंने वायलेट किया है, ये गलत बात है। लेकिन इनको डिफेंड कौन करेंगे, शेक्सपियर को? शेक्सपियर को डिफेंड करने के लिए आएंगे सैमुअल जॉनसन, जो ये कहेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी उनके जो ड्रामा है वो काफी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है अगर उन्होंने थोड़ा बहुत वायलेट कर भी दिया तो। इन्होंने कहा कि जो भी कोई आर्ट है इट शुड बी इंस्ट्रक्टिव एज वेल एज एंटरटेनिंग। तो इनके लिए एक टर्म है डोसियर एट डेलेक्टर, तो ये आपको ध्यान रखनी, डोसियर या डेलेक्टर क्या होता है। इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्ट एज वेल एज एंटरटेन, कि जो भी आप कोई भी वर्क ऑफ आर्ट पढ़ रहे हो या आप देख रहे हो तो उसमें आपको क्या दिखना चाहिए, आपको एंटरटेनिंग के साथ साथ, प्लेजर के साथ साथ आपको क्या मिलना चाहिए, कोई इंस्ट्रक्शन जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, बी ग्राउंडेड इन ऑब्जर्वेशन ऑफ रियल लाइफ, नॉट रोमांटिक फैंटेसी। ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी चीज को ग्लोरीफाई मत करो। अगर मान लो कि आप किसी के साथ जो है कोई वॉर हो रही है, तो वॉर को, जैसे कि वॉर पॉइंट्स हम देखेंगे कि वो वॉर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड सम राइटर्स आर देयर जो कहते हैं कि वॉर जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, वी शुड नॉट ग्लोरीफाई इट, हमें जहां तक हो सके वॉर से बचना चाहिए, तो वो ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये भी कहते हैं कि रियल लाइफ जो है एक्सपीरियंस हमारे, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस को हमें क्या करना चाहिए, ग्राउंडेड होकर के ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें उसके अंदर कोई रोमांटिक जो है वो फैंटेसी नहीं लानी चाहिए। देन वी हैव इमिटेट द ग्रीक एंड रोमन मास्टर्स, जैसे इन्होंने हमने पढ़ा था कि एरिस्टोफेन्स जो मास्टर ऑफ कॉमेडी माने जाते हैं, प्लॉटस, होरेस, ठीक है, क्योंकि होरेस में कैसे हैं, वो भी चाहते हैं कि इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए आर्ट को। तो ये होरेस के जो है फॉलोवर हैं, एरिस्टोफेन्स, प्लॉटस एंड होरेस के फॉलोवर्स हैं। So that is all about his writings, his biography, कैसे जो है वो एक ब्रिकलेयर के बच्चे से, यानी ब्रिकलेयर के चाइल्ड से वो एक सोल्जर बनते हैं, देन वो एक्टर बनते हैं, आफ्टर दैट वो एक राइटर भी बनते हैं, और ऑब्वियसली बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट थे। कॉमेडीज जो है इनकी, ये कैसी हैं, अगर आपसे पूछे तो ये ना सिर्फ आपको एंटरटेन करेंगी, बल्कि आपको इससे कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज एट द एंड ऑफ द प्ले जरूर मिलेगी।
आपकी सबसे पहली है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, यू नो द सीक्वेंस राइट, अभी हमने डिस्कस किया था। वॉल्पनी द फॉक्स, एपिसियोन ऑफ द साइलेंट वुमेन 1609, एल्केमिस्ट 1610, बार्थोलोम्यू फ्यूर 1614। आपको इनको तो क्या करना है, बहुत अच्छे से जो है लर्न करना है विद करेक्टर्स। करेक्टर्स के साथ साथ आपको इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग भी जरूर देखनी है कि स्टार्टिंग में सेट जो है कहां थी, ये इनकी जो सेटिंग्स थी वो कौन सी कंट्री में है, इसका एंड या रेजोल्यूशन क्या हुआ, इसमें कौन कौन से करेक्टर्स है। बिकॉज यू नो सेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, एपी का हो, पीजीटी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, किसी भी जो है स्टेट लेवल एग्जाम आप देखते हो, उसमें इनकी कॉमेडी से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, और डिजर्व भी करते हैं ये। देखिए ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इसकी सेटिंग जो है वेनिस में है। वॉल्पनी द फॉक्स, वी फॉर वॉल्पनी और वी फॉर वेनिस। तो ये एक सेवे सेटायर है ग्रीड पे और ये सेट है वेनिस के अंदर। एपिसियोन द साइलेंट वुमेन, कॉमेडी ऑफ डिस्गाइज एज जेंडर, और ये मैरिज जो है जेंडर रोल्स को भी डिस्कस करता है प्लस मैरिज को भी ये डिस्कस करता है। तो डिस्गाइज एंड जेंडर की बात हो रही है। एल्केमिस्ट ये ब्रिलियंट सेटायर है अगेन फ्रॉड एंड गिलिबिलिटी पे और इसकी सेटिंग लंदन है, ठीक है, अर्बन लाइफ के बारे में है। बार्थोलोम्यू फ्यूर ये एक कार्निवलेस्क पोर्ट्रेट ऑफ लंदन लाइफ है अगेन। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर कब आया, वॉल्पनी द फॉक्स कब आया, एपिसियोन द साइलेंट वुमेन, इनकी सेटिंग्स और थोड़ा थोड़ा इनका जो है थीम आपको पता होना चाहिए। देखिए एक इनका सेजनस हिज फॉल है, ठीक है, इसके अंदर जो है शेक्सपियर ने एज अ एक्टर भी रोल प्ले किया है इस ट्रेजेडी के अंदर। ये दो इनकी ट्रेजेडीज हैं, आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, सेजनस हिज फॉल एंड कैटलिन हिज कॉन्स्पिरेसी। तो ये दो ट्रेजेडीज हैं जिसमें सेजनस के अंदर शेक्सपियर ने एज एन एक्टर काम किया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें मिस्टर नोवेल का जो है जो करेक्टर प्ले किया है वो भी शेक्सपियर ने किया है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। हो सकता है मैंने किसी एक क्लास के अंदर शायद उसमें एल्केमिस्ट बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स। आपको ध्यान रखना है कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के अंदर जो है शेक्सपियर ने एज एन एक्टर रोल प्ले किया है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं आपको बता ही चुकी हूं कि वो फ्रेंड और राइवल दोनों थे, क्योंकि उन्होंने शेक्सपियर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी कि शेक्सपियर जो है स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक है। अब देखिए लैटिन का मतलब क्या है कि उस टाइम पे क्लर्जी की लैंग्वेज होती थी, और आपको पता है ये पनिशमेंट से बचने के लिए गैब्रियल स्पेंसर की जब इन्होंने मर्डर किया था, ड्यूल के अंदर उसकी डेथ हो गई थी, तो एट दैट टाइम इन्होंने कहा था, ये वास्ता दिया था कि आई कैन प्रूव माई सेल्फ कि आई कैन रीड लेटिन। तो ये लेटिन का जो हवाला देकर के बच गए थे, ये क्लर्जी अपने आप को प्रूव कर देते हैं और इनको वो पनिशमेंट नहीं मिलती। तो इन्होंने क्या कहा है कि उनको लेटिन कम आती है, ग्रीक ज्यादा, ठीक ना, स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक, यानी लेटिन और ग्रीक जो है वो उसका शेक्सपियर के साथ कोई दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर इज नॉट एज एजुकेटेड एज ही इज। तो ये meant as mild it's the lack of classical learning, क्योंकि वो क्लासिकल लर्निंग कहते हैं उन्होंने कभी इन चीजों को पढ़ा ही नहीं है, कभी क्लासिकल राइटर्स को पढ़ा ही नहीं है, दैट्स व्हाई ही वायलेटेड द 3 यूनिटीज। तो ये यहाँ पर शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक कहते हैं, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं सॉल ऑफ द एज भी कहते हैं। जैसे कोटेशन है कि शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ओल्ड टाइम। अब ये क्यों कहा, आपको पता है, जब आपने शेक्सपियर के वर्क्स पढ़े थे यू फील रिलेटेबल। अभी हम 2026 में हैं बट स्टिल वी फील रिलेटेबल, कि आज भी हमें लगता है कि शेक्सपियर ने अभी अभी ये चीजें हमारी सोसाइटी, कंटेम्परेरी सोसाइटी को देख करके ही लिखी हैं। सो ये राइवलरी भी है प्लस उनकी अच्छाई कोई है तो उसको वो मानने से भी इनकार नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि शेक्सपियर जो है, हो सकता है कि वो स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक हैं, बट फिर भी उनकी जो राइटिंग्स हैं उनको देख करके लगता है कि वो सोल ऑफ द एज है। ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ओल्ड टाइम। इन द प्रीफेस टू द, अब ये कहां बोला उन्होंने, Preface to the first folio 1623. Johnson helped edit and publish first folio शेक्सपियर की डेथ के बाद, क्योंकि आपको पता है शेक्सपियर 1616 में डेथ हो गई थी और उस टाइम पे बेन जॉनसन पोएट लॉरिएट बन गए थे। ठीक है, बेन जॉनसन क्या बन गए थे, जब शेक्सपियर की डेथ हुई तो बेन जॉनसन पोएट लॉरिएट बन गए थे, और इन्होंने जो है हेमिंजेस या उसके साथ मिल करके शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था उसको इन्होंने पब्लिश करवाया था। ओके, सो दिस इज अबाउट रिलेशनशिप विद शेक्सपियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट हिज कॉमेडीज सो दैट आपको थोड़ा सा और कैरेक्टर्स का जो है पता चले, ताकि आपको थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़े। आपको थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए वैसे,
कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करें, अपना थोड़ा सा जो है ब्रीफ कहीं से आप जैसे मेरी क्लास देख करके आप ब्रीफ जो है आइडिया लेकर के और अपना खुद का नोट्स बनाएं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स टू, इस तरीके से आप अपने जो है नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत जो है जैसे 1598 में ये जो वर्क है इनका 1598 के अंदर आया था, और ये प्ले जो है इससे आपको पता है कि बहुत ही फेमस हो गया था। ये जो इनका प्ले है ये बहुत फेमस हुआ था, और ये आपको पता है कि सेटायर है। क्या है ये? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर क्या है? एक सेटायर है। और सेटायर किस पे है? ह्यूमन वीकनेस थ्रू कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर ह्यूमर। आपको पता है, मैंने अभी डिस्कस किया था कि ह्यूमन की कुछ वीकनेस होती हैं, या तो वो चीज उनमें कम होती है या ज्यादा होती है। जैसे हम काइटले में पढ़ते हैं, इसके अंदर काइटले जो कैरेक्टर है आपका, ये बहुत ही फैंटास्टिक अफेक्टेड जेंटलमैन है। इसको प्राउड है अपने आप पे कि मैं बहुत ही विटी और ह्यूमरस हूं। तो इनको जो है काइटले का जो कैरेक्टर है, जो इनके अंदर जो बाइल पाया जाता है, उसकी वजह से पूरा का पूरा प्लॉट जो है वो आगे फोर्स, पूरे प्लॉट को जो है फोर्स मिलता है इनकी एक्शंस के थ्रू। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है आपको पता है, कॉमेडी है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, सस्पिशन होगा, लव अफेयर्स होंगे, सोशल प्रिटेंशंस होंगे। तो ये लंदन लाइफ के बारे में डिस्कस करता है, अर्बन लंदन लाइफ के बारे में, कि वहां पे किस प्रकार की सोसाइटी है और उस सोसाइटी के ऊपर सटायर करते हैं। ठीक है, अब इनके जो एक करेक्टर है यहाँ पे यंग नोवेल। ठीक है, एक नोवेल नाम का करेक्टर है, वो रोल प्ले किसने किया था? वो तो किया था शेक्सपियर ने। उसका बेटा होता है एक एडवर्ड, यंग एडवर्ड नोवेल। ठीक है, तो ये क्या है, इसके पास इसका फ्रेंड एक लेटर भेजता है। अब नोवेल क्या करता है, एडवर्ड नोवेल क्या करता है, वो अपने बेटे के ऊपर डाउट करता है कि मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ में फोकस्ड नहीं है अपने करियर के ऊपर, ये कुछ और कर रहा है। तो वो क्या करता है, उसके फ्रेंड के दिए हुए लेटर को जो है ओपन करता है, और उस लेटर के अंदर जो एडवर्ड का फ्रेंड है वो उसके फादर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत ऐसे बोल देता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एक फ्रेंड का जो है लेटर आ रहा है, और वो फ्रेंड उसके जो जिस फ्रेंड को लिख रहा है उसके फादर के बारे में कुछ लिख रहा है उसके लेटर के अंदर, वो फादर ही उसको पढ़ ले तो कितना जो है क्रिटिकल सिनेरियो होगा, आप समझ सकते हैं। तो उसका फादर जो है यानी एडवर्ड नोवेल जो है वो यंग नोवेल के बारे में सोचते हैं कि बहुत ही इमोरल बिहेवियर है, एंड उसके ऊपर वो नजर रखते हैं। वेरियस एसेंट्रिक कैरेक्टर्स क्रिएट कॉमिक कंफ्यूजन अंटिल द मिसअंडरस्टैंडिंग आर रिजॉल्व। तो देखिए पूरा का पूरा जो है लास्ट तक जब आप इसको पढ़ते हो इस प्ले को, तो यू कैम टू नो कि लास्ट में वो ठीक निकलता है। एडवर्ड नोवेल यंग जो नोवेल है वो ऐसा बेकार नहीं है जैसा उसके फादर उसके बारे में सोचते हैं। ये है यंग नोवेल। ठीक है, ये बेला से लव जरूर करता है बट ये ठीक लड़का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक ब्रेन वॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आया था कि ब्रेन वॉर्म जो है वो कौन सी कॉमेडी के अंदर है बेन जॉनसन की, तो ये एक फुलिश और फॉनिंग सर्वेंट है वेल ब्रेड का ब्रेन वॉर्म। ठीक है, ये नॉवल है पेडेंटिक बुकिश जेंटलमैन हु मिस अप्लाइज लर्निंग एंड कोर्स इनएप्रोप्रिएटली। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट है आपके, ये काइटले की मिस्ट्रेस है मार्जरी। ठीक है, प्लेन स्पोकन एंड लॉयल है, एक वेल ब्रेड है, काइटले का फ्रेंड कॉटली जेंटलमैन है जो पोलाइट है बहुत ज्यादा। ये मिस्ट्रेस काइटली है, काइटली की वाइफ। अब देखो क्या है, काइटली जो है उसकी वाइफ तो है मिस्ट्रेस काइट, ये जो है काइटली की वाइफ है, और ये इसकी जो है क्या है, मिस्ट्रेस है। मिस्ट्रेस का मतलब शी इज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब जो काइटली है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है मार्जरी के साथ। तो इनके बीच में भी कुछ जो है यहाँ पर सस्पिशन या फिर आप कह सकते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कॉमेडी में जो होता है वो पाया जाता है। आपको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ कैरेक्टर्स के नेम ध्यान रखने हैं। नोवेल का बेटा होता है यहाँ पे यंग नोवेल, और ये जो है वेलब्रेड जो है, वेलब्रेड काइटली का फ्रेंड है, इसका फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में। काइटली जो है इसका फ्रेंड जो है वेलब्रेड, और वेलब्रेड का नौकर कौन है, ब्रेन वॉर्म। तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है इसको जब आप पढ़ोगे, इस प्ले को जब आप पढ़ोगे, कम टू नो कि किस प्रकार से ये आपस में लव इंट्रीग में फंसी हुई है कॉमेडी। मतलब आपको इसके अंदर लव इंट्रीग मिलेंगे, पता ही नहीं है कौन किसके साथ है। ठीक है, इसके अंदर सस्पिशन मिलेगा, जैसे एक फादर अपने सन के ऊपर सस्पिशियस है, वो उसको डाउट करता है, उसको स्पाई करने की सोचता है, तो सस्पिशियस इसके अंदर कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, है ना। तो जो यंग एडवर्ड नोवेल है, ही लव्स ब्रिजेट टू बाद में। ठीक है, हिज फादर सस्पेक्ट्स इमोरल बिहेवियर। तो ये पूरे के पूरे कैरेक्टर्स, और थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ लो डिटेल, और इसकी चाहे तो आप समरी जो है लेट चार्ट्स या स्पार्क नोट से पढ़ सकते हैं। देन ये वर्क जो है इनका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वॉल्पनी द फॉक्स। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो ये हैं। वॉल्पनी जो है
Volpini the fox, एक rich Venetian pretending to be dying in order to cheat and manipulate those who surround him for his own gain. ये बहुत ही cunning है ना? और इसका एक सर्वेंट होता है जिसका नाम होता है मॉस्को, मॉस्को द फ्लाई. ये भी ध्यान रखना है, वॉल्पनी द फॉक्स, मॉस्को द फ्लाई, कॉर्बेशियो द क्रो, लियोन द लायन, कार्विनो द रेवन, बोनारियो गुड बोनारियो. ठीक है, ये करेक्टर्स आपको ध्यान रखने, और इनके जो ये यहाँ पे देखिए एक यूज किया गया है एनिमल्स के जो नेम से. ठीक है, द क्रो यूज किया गया है, द लायन यूज किया गया है, द रेवन. तो यहाँ पे ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखने की किसको क्या बोला गया. आपसे फ्लाई पूछ लेंगे तो मोस्का के लिए यूज किया गया है. अब देखिए क्या है, ये पैरासिटिक और साइकोफेंट है जो वॉल्पनी को क्या करता है, फ्लैटर करने की कोशिश करता है. देखिए ये अपने आप को बहुत ज्यादा कनिंग समझता है, लेकिन जो इसका जो ये सर्वेंट है मॉस्को, ये तो बिल्कुल पैरासिटिक है, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा कनिंग है कि आंखों से काजल निकाल ले इस टाइप से. ठीक है, कॉर्बेशियो जो है एक जेंटलमैन है जो वॉल्पनी जो है उसकी बातों में आ जाता है और उसकी डॉटर यानी होप्स टू मैरी हिज डॉटर. ही इज वेन, जेलस एंड क्विक टेम्पर्ड पर्सन है. ठीक है, एक है आपका लियोन, ये कॉर्बेशियो जो है एक मर्चेंट है, कॉर्बेशियो का फ्रेंड है. ये आपको इसको ज्यादा नहीं, कॉर्विनो इंपॉर्टेंट है, ये प्लॉट करता है अदर्स दूसरे लोगों के साथ मिल करके वॉल्पनी के पैसे को पाने के लिए. तो ये रेवन या फिर कॉर्विनो आपको ध्यान रखना है. बोनारियो बहुत अच्छा करेक्टर इसके साथ दिखाया गया है, यंग एंड जेनरस, द ओनली ट्रूली काइंड करेक्टर, ही लव्स वॉल्पनीज डॉटर एंड इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर. ये एक अच्छा करेक्टर है, गुड है. बाकी सारे के सारे कैसे हैं इसके अंदर, बहुत ही वाइज फिगर यहाँ पे दिखाए गए हैं. तो आपको ये करेक्टर्स का ध्यान रखना है कि कौन कौन से करेक्टर्स किस प्रकार के हैं. तो सेट इन वेनिस, अगेन मूविंग अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि वॉल्पनी है, इसकी सेटिंग याद रखनी है वेनिस में. ये ग्रीड और करप्शन को शो करता है. वॉल्पनी जो है वो प्रिटेंड करता है कि वो डेथ होने वाली है. वो ग्रीडी ट्रिक्स ग्रीडी लेगेसी हंटर्स इनटू गिविंग हिम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स इन होप्स ऑफ इनहेरिटेंस. ये क्या करता है, जिन जिन लोगों को अपने जो है ट्रैप करता है, अपने चंगुल में फंसाता है, सर्वेंट मॉस्को के साथ मिल करके, जैसे कि वोल्चर है, कॉर्बेशियो है, कॉर्विनो है. लेकिन फाइनली क्या होता है, इसका जो सर्वेंट है मॉस्को, वो सारी सच्चाई उगल देता है, यानी जो फ्रॉड है वो एक्सपोज हो जाता है और सबको पनिशमेंट मिलती है. जिन जिन लोगों ने, यानी जो जितने भी लोग हैं बोनारियो को छोड़ करके, उन सबको पनिशमेंट मिलती है और सब लोग जो हैं अपनी करनी का जाते हैं. तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट दिस वॉल्पनी द फॉक्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव एपिसियोन द साइलेंट वुमेन. वी हैव डिस्कस इट अर्लियर कि एपिसियोन जो है इसके अंदर एक मैन होता है मोरोस. वो क्या करता है, वो एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो कि साइलेंट हो, क्योंकि ही हेट्स नॉइस, इसको नॉइस नहीं पसंद है ना. तो द मैरिज बिकम्स डिजास्ट्रस बिकॉज शी टर्न्स आउट टू बी एक्सट्रीमली टॉकेटिव, है ना, वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव निकलती है. तो उसको पता चलता है कि ये तो मेरी जो लाइफ है उसको हेल्प कर देगी. तो बेसिकली ये एपिसियोन द साइलेंट वुमेन, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि साइलेंट वुमेन में साइलेंट वुमेन कौन थी, तो ये एपिसियोन आपको ध्यान रखना है. देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क द एल्केमिस्ट. ऑन एंड ऑफ इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसकी सेटिंग भी पूछी गई है कि प्लेग का जब आउटब्रेक हुआ था लंदन में, तब वहां पर इसकी सेटिंग है. इसका जो सर्वेंट है उसका नाम होता है फेस. Joins subtle, a fake alchemist, and Dole common to cheat greedy and foolish people. They promise wealth, magical powers, and success to gullible victims. Eventually, the fraud collapse. होता क्या है, फेस जो है वो एक क्लेवर सर्वेंट होता है. देखिए, एक इसका जो है कोई मालिक होता है, ठीक है, तो मालिक जो है वो कहीं दूसरी कंट्री, यानी प्लेग फैल गया था, तो प्लेग से बचने के लिए इसका जो घर का जो ऑनर होता है वो क्या करता है, वो वहां से चला जाता है. तो ऑनर का जो घर है उसके अंदर एक जो है आप कह सकते हो बिजनेस स्टार्ट कर देता है उसका क्लेवर सर्वेंट फेस. ठीक है, फेस क्या करता है, वो कहता है कि मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं क्या कर सकता हूं, लोहे को भी सोने में बदल सकता हूं. यानी वो एल्केमी का जो है झांसा दे करके लोगों को फंसाता है, वो ट्रिक करता है ग्रीडी पीपल को. सटल एंड डोल कॉमन, यानी इसके फ्रेंड कौन होते हैं इसके साथ साथ, एक तो सटल होता है और एक होती है डोल कॉमन जो कि प्रोस्टिट्यूट होती है. ठीक है, ये तीनों मिलकर के लोगों को ट्रैप करते हैं और उनके साथ ट्रिक करके उनको जो है अपने जाल में फंसा करके और उनको पैसा ले लेते हैं उनसे. सटल फेक एल्केमिस्ट होता है जो है मैजिकल साइंटिफिक पावर की बात करता है. देखिए इनके इसके हाथ में भी है, ये कहता है कि मैं इसके साथ जो है एल्केमी के साथ मैं लोगों को बहुत ज्यादा पैसे वाला है ऐसे बना सकता हूं. एक स्मार्ट वुमेन होती है जो फ्रॉड करती है, किसके साथ, फेस और सटल के साथ मिलकर के. लवविट जो है, ये जो घर का जो ऑनर होता है उसका नाम क्या होता है,
लव विट। ठीक है, लव विट कौन होता है? घर का ऑनर होता है, जो लास्ट में जब आता है तो उसको पता चलता है, लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारे घर में तो ऐसा ऐसा चल रहा है, कोई एल्केमी का जो है झांसा देकर के लोगों को फंसा रहा है। तो जब इसको सच्चाई पता चलती है, क्योंकि इसके जो टारगेट होते हैं वो कौन होते हैं? सर एपिक्योर मेमन। यानी ये मिल करके किस किस को जो है अपना टारगेट बनाते हैं? एक सर एपिक्योर मेनन को बनाते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, बस तुम हमें इतना पैसा दो। एक अबेल ड्रगर जो है, इसको टोबैको सेलर होता है, कहता है मैं वन ऑफ द बेस्ट जो है सेलर या मर्चेंट बनना चाहता हूं, तो कहता है तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है, तुम हमारे लिए ये कर दो। डेपर जो है ये मैजिकल पावर चाहता है, चाहता है कि फेरी मिले इसको, और उस फेरी के थ्रू ये गैम्बलिंग में बहुत सारा पैसा जीत जाए। कहता ठीक है, तुम हमें इतना सारा पैसा दो, बदले में तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है दो जो है ये करेक्टर्स हैं, ट्रेबुलेशन होलसम हो गया और एनानियस हो गया। तो ये प्रोड्यूस वेल्थ फॉर द रिलीजियस ग्रुप। ये टू प्यूरिटन्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं? एल्केमी के थ्रू जो है ये ग्रुप था, ये भी एल्केमी के थ्रू क्या कर रहे थे? बहुत सारा पैसा जोड़ रहे थे, यानी ये भी लोगों को ऐसे ट्रिक करते थे। तो बेसिकली एपिक्योर मेनन है, ड्रेपर है ना, ये जो करेक्टर्स हैं, इन करेक्टर्स को, जो अदर जो करेक्टर्स हैं, इनको क्या कर रहे थे? ये मिल करके ड्रैगर को मिल करके उनको अपने झांसे में फंसा रहे थे। ये तीनों, फेस, सटल और डॉल कॉमन। और इसका जो ऑनर है वो कौन है? लवविट है, जो लास्ट में आकर के इनको पनिश करवाने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, तुमने ऐसा किया। तो ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि तुम्हारी हम शादी करवा देंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि लवविट जो है वो अनमैरिड है, और उसको फिर अगेन जो है उसको झांसे में फंसा करके और खुद जो है फ्रीली घूमने लग जाते हैं। सो बेसिकली दिस इज अबाउट एल्केमिस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी समरी क्या है और कैरेक्टर्स कौन से हैं। दिस इज अगेन बार्थोलोम्यू फेयर रिटन बाय बेन जॉनसन। आपको इनको थोड़े से कैरेक्टर्स की ध्यान रख लेनी है, नेम्स की, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स है। जैसे इसमें एक कैरेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, देखिए, द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज ज़ील ऑफ द लैंड बिजी। ठीक है, देखिए जैसे इनके नाम है वैसे ये सच में कैरेक्टर पे वैसे ही हैं। जस्टिस ओवरडू, ठीक है, बार्थोलोम्यू फेयर प्रैक्टिकल एंड बिटी, ये हो गया बार्थोलोम्यू फेयर। विनीफ्रेड, ये शार्प टंग एंड स्पिरिटेड वाइफ है इसकी। लिटिल विट, देखो लव विट तो आए एल्केमिस्ट में, लव विट किस में आया है? एल्केमिस्ट में। लेकिन लिटिल विट जिसकी बुद्धि कम है वो किस में है? देखिए इसकी शक्ल से आपको पता चल रहा होगा, लिटिल विट जो है कंट्री फेलो है और इसमें विट की कमी है। तो ये वैसे गुड पर्सन है, ऑनेस्ट है, बट स्टिल he is considered as little bit in this play. तो ये याद रखना है। ट्रू मैन, ये याद रखना है। सपोर्ट फ्रेंड who betrays Bartholomew for his own advantage, ट्रू मैन है ये। zeal of the land busy, the busy body and self righteous official who is full of zeal but little sense। ठीक है, इसके अंदर तो ये कैरेक्टर्स हैं, जो नेड डैम्पियर है, जस्टिस ओवरडू है, विनफ्रेड है, बार्थोलोम्यू फेयर है, लिटिल विट है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, किस में आए थे? बार्थोलोम्यू फेयर के अंदर। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने कोशिश की है बेन जॉनसन के कुछ वर्क्स को टचअप जो है देने की। आई होप यू गॉट द आइडिया कि हाउ यू हैव टू स्टडी दीज प्लेज एंड हाउ द द बाइल that was used by Ben Jonson worked as a force to his plays। तो आपको जो है इन कॉमेडीज को थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहिए। इनके जो है आप सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स व्हाइल मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको और चाहिए तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट इन द सेक्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।